Good morning, students. Welcome to today's class. Dear students, today I am going to discuss with you the fourth chapter of your textbook, and this is about an Indian American woman in space, that is none other than Kalpana Chawla. I hope you have heard little bit about Kalpana Chawla. You might have studied about her and may have some ideas about this great lady. Okay, and if you are fascinated about the space, if you want to know more about space, then you must read the stories of Kalpana Chawla, and you should get some inspiration from her life. Okay, so it's a wonderful piece of writing to motivate our young brains like you people. You are the future of our country. You are the future of the entire world, and the future of the entire world depends on you. If you become successful, if you become great in life, if you create something, innovate something, and contribute something for the society, then you will be also remembered forever like Kalpana Chawla, right? Okay, so it's a beautiful story, and I won't say it's a story, it's a means real incident. Okay, here we are going to discuss about a real incident. It's real. Okay, it's not fiction, it's a नॉन फिक्शन. इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? नॉन फिक्शन. ठीक है, नॉन फिक्शन मतलब रियल होता है बच्चों. जो भी आप देखना, अमेजन हो या तो फिर आप फ्लिपकार्ट्स हो, देर आर सो मैनी online marketing shopping sites are there. Okay, e-commerce sites are there in which you can browse the books and also select some of the books for your reading. Okay, so वहाँ पर देखना बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं. टेक्स्ट बुक्स, हायर एजुकेशन, स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन, रेफरेंस बुक्स, कंपटीशन बुक्स. ओके, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस. तो हमेशा देखना जो फिक्शंस लिखा रहता है बच्चों, जहाँ पे फिक्शंस लिखा रहेगा, फिक्शन. ओके, फिक्शंस मीन्स व्हाट यू नो, ये मनगढ़ंत, मनगढ़ंत मतलब these are imaginary, not real. Fictions means what? Not real. The stories that you read in the fiction are not real. They are the creations of the writer. वो सारे राइटर्स के क्रिएशंस होते हैं बच्चों. ओके, और जो दूसरी पार्ट होता है दैट इज़ नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन जो होता है, दीज आर ऑल रियल स्टोरीज. ये सारे होते हैं रियल कहानियाँ, रियल इंसिडेंट्स जो कि किताबों में लिखी गई है. ओके, समझ में आया? सो द वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, it's a non-fiction one. Okay, it's a real one. Okay, and it's a highly motivative one. So let us try to understand about it and try to know what is there in the text. Okay, तो आप साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी. You will get some words, right? Okay, there are some scientific words that you will get to know. उन vocabulary आपके enrich हो जाएगी, है कि नहीं? Also you will get to know about the space, यानी कि आपकी geography, right? आपकी geography और science दोनों ही मतलब you will be getting informations about it, right? Clear? Also you will read the biography of what you know, biography. You'll get a short biography of who was Kalpana Chawla. Kalpana Chawla कौन थी and why was she famous? Why this chapter has been given to motivate you people? What is her contribution to the world community? That
all has been discussed here. Okay, what makes her a great woman, what makes her a successful scientist is all written here. So when we go through the text, we will try to find out the elements, okay, which are essential for you to learn. हम लोग इसमें पढ़ते पढ़ते हम वो देखने की कोशिश करेंगे, उन सब एलिमेंट्स को खोजने की कोशिश करेंगे जिस एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एडॉप्ट इन आवर लाइफ, जो कि हम अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं और उनको अपना सकते हैं. ओके, सो आई होप this is going to be really a very good interesting session for you. Okay, so without any delay, let us begin the chapter. Before you read, here it is written, my dear children, before you read, you must read this one. Okay, this is the preface of the this chapter. In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia. Okay, in 1997, this is the beginning of your story. Here the writer is trying to give you a little bit of idea about who was Kalpana Chawla and how her journey started in life. उसके जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ एज ए एस्ट्रोनॉट, एज ए साइंटिस्ट इन नासा, उसके बारे में एक ही इज़ ट्राइंग टू थ्रो लाइट. वो आपको कुछ धारणा देना चाहते हैं, कुछ सम्यक ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ ज्ञान उसके बारे में देना चाहते हैं. सो हियर इट इज़ रिटन दैट इन 1997 इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, इट इज़ रिटन दैट शी वॉज नॉट इंडियन. वाई इज़ इट रिटन इंडियन अमेरिकन? अच्छा, इंडियन अमेरिकन किसको कहते हैं बच्चों, आपको पता है? इंडियन अमेरिकन, कोई व्यक्ति क्या दो कंट्री का नेशनलिटी ले सकता है? वो इंडियन भी हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है. ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, जैसे कि आप अभी छोटे हो, ठीक है, कुछ सालों के बाद जब आपकी क्लास 12 पास कर जाओगे और जब इंजीनियर्स बनोगे या डॉक्टर्स बनोगे मान लो, ठीक है, और आपको अमेरिका में जॉब मिल गई, तो आप क्या करोगे? वहीं चले जाओगे. यू विल गेट सेटल्ड देयर, है ना, वहाँ पे आप सेटल्ड हो जाओगे. आपकी जब तक आपकी नौकरी ख़त्म नहीं होगी तब तक आप वापस नहीं आ सकते. ओके, और हो सकता है कि आप नौकरी ख़त्म होने के बाद यू मे बाय अ गुड फ्लैट, यू मे बाय अ गुड बंगलो फॉर यू एंड यू मे परमानेंटली सेटल देयर, है ना. ये होता है. मेनी इंडियन फैमिलीज हैव सेटल्ड देयर इन यूएस, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, सो ये होता है. तो उनको कहा जाता है इंडियन अमेरिकन. उनको क्या कहा जाता है? इंडियन अमेरिकन. बेटा एक्चुअली अमेरिका में बहुत सारे लोग आके रहते हैं. अमेरिका को इसलिए कहा जाता है कि एक कस्मोपॉलिटन कंट्री. क्या कहा जाता है? कस्मोपॉलिटन कंट्री. कस्मोपॉलिटन, cosmopolitan society. What is the meaning of cosmopolitan? It is a society where you find people from all backgrounds, people from various corners of the world, people of different colors, people of different faith, अलग अलग धर्म के, people of different religion, अलग अलग आस्था के, अलग अलग धर्म के, पीपल ऑफ डिफरेंट टोंग्स, अलग अलग भाषा बोलने वाले, ऑफ डिफरेंट टोंग्स. सो इन दिस वे ऑल दिस डाइवर्सिटी मेक यूएसए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ कस्मोपॉलिटन सोसाइटी. इसको क्या बना देता है? एक कस्मोपॉलिटन सोसाइटी बना देता है. ओके, तो जब आप अमेरिका जाओगे तो ये मत सोचना कभी कि मतलब आप कंप्लीटली क्या हिंदी भूल जाओगे या फिर आप मतलब पूरे अनजान जगह में आ गए. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ जस्ट लाइक इंडिया. देयर मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल आर सेटल्ड. ओके, सो ऑल दोज पीपल दे विल गिव यू कंपनी. वो भी आपको साथ देंगे, यू कैन एंजॉय देयर, राइट. और हम तो चाहेंगे कि आप लोग बहुत पढ़ें, बहुत तरक्की करें. इट इज़ आवर विश. मैं तो भगवान से आई प्रे टू माई गॉड
कि मेरे सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास 6 में हैं, सभी के सभी, ओके, दे ऑल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, वो सारे के सारे बहुत सक्सेसफुल हों, ओके, और आप आसमान में चांद सितारों की तरह वो ओके, चमकते रहो बेटे. सो दिस इज व्हाट वी विश, ओके, and we pray to the God also. So all these things are possible. So now let me tell you that she was born in India, okay, but she was settled in America. So that's why she is called an Indian American astronaut. Okay, she is Indian American. She was born in India. She went to America to work there as a scientist or as a researcher. Okay, and eventually, finally, okay, she married there and she got settled in America. So that is why she is called Indian American, means an American of Indian origin. Okay, right? Was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia. Okay, she was a part of the international crew. What is the meaning of crew? क्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हो? क्रू का मतलब ये होता है CREW, इसका स्पेलिंग होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है क्रू. क्रू, लॉन्ग ऊ, क्रू. ओके, शी वॉज अ पार्ट और शी वॉज ए मेंबर. पार्ट मीन्स योर मेंबर. शी वॉज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रू aboard the US space shuttle. Aboard means on the board. Aboard means what? Aboard. ABOARD. Aboard means on the board. On the board मतलब जो बोर्ड पे बैठे हुए थे, या जो उस व्हीकल पे बैठे हुए थे, या उस व्हीकल में बैठकर जाने वाले थे. ठीक है, उनमें से एक थी. कौन से व्हीकल में? What was the name of the vehicle? उस व्हीकल का नाम क्या था और कहाँ जा रहा था? उस व्हीकल का नाम था कोलंबिया. एंड व्हाट वाज कोलंबिया? कोलंबिया क्या है? कोलंबिया इज अ स्पेस शटल बच्चों. कोलंबिया इज अ यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस शटल. अच्छा, स्पेस शटल होता क्या है ये भी जानना आपको जरूरी है. व्हाट इज अ स्पेस शटल? स्पेस शटल होता क्या है? एक्चुअली स्पेस शटल आप देखे होंगे ऐसे दिखता है. अभी अभी इसरो ने एक कंपटीशन कराया था ना बच्चों, ठीक है, राइट. स्पेस शटल ऐसे दिखता है. इट इज़ एक्चुअली रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर. ये रॉकेट जैसा होता है. इट गोज़ टू द स्पेस. कहाँ जाता है ये? स्पेस में जाता है. इट गोज़ टू द स्पेस. ये आपको स्पेस में लेकर जा सकता है. ओके, पहले रॉकेट में जाते थे लोग, या रॉकेट का इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल स्पेस शटल का इस्तेमाल होता है. डिफरेंस रॉकेट और स्पेस शटल में ये होता है कि बच्चों कि रॉकेट सिर्फ एक बार ही जा सकता है. रॉकेट की डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि इट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, इट कैन नॉट बी री यूज्ड, राइट. लेकिन स्पेस शटल जो होते हैं उसको बार बार, ठीक है, ऐसे तो जैसे कि ये जो कोलंबिया है स्पेस शटल, द स्पेस शटल which is mentioned in this chapter, कोलंबिया, जिसमें कि हमारी कल्पना चावला जो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट, ओके, शी वॉज गोइंग टू द स्पेस. शी वॉज गोइंग टू द स्पेस एज अ क्रू मेंबर, एज अ मेंबर ऑफ द क्रू. ओके, शी हैड बीन सिलेक्टेड, शी हैड बीन गिवन ट्रेनिंग फॉर दैट ऑल्सो, and finally they were all set to go to the space in 1997. क्लियर. अब देखो उसमें क्या है. शी becoming the first woman born in India to go into space. Why Kalpana Chawla is given so much of importance in our Indian society? Do you know? She is an inspiration for all the girls and the women of our country. बच्चों, मैं आपको बता दूं कि स्पेस में जाना ये कोई मामूली बात नहीं है. इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी अचीवमेंट. ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई ऑर्डिनरी अचीवमेंट है नहीं. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों, और ये हर किसी को नहीं मिलती है. नॉट एवरीबडी कैन क्वालिफाई फॉर इट.
only those who are very hardworking, very talented, extraordinarily fit, and innovative, and they have a strong mentality to fight in adverse situation. They are only selected to be a part of the international crew. तो नासा की जो टीम बनती है उस टीम को कहा जाता है क्रू. ओके, स्पेस में जाने के लिए जो टीम बनती है उसको क्रू कहा जाता है. क्रू, राइट. सो शी वॉज ए मेंबर ऑफ द क्रू विच वॉज going to space in the space shuttle Columbia. And she is the first Indian woman. पहला इंडियन वुमेन है जिसने कि स्पेस में कदम रखा और सी वेंट टू स्पेस. हालांकि इंडिया के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, इंडिया के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. उसी समय में 1997 की बात करें तो उस समय इसरो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था या इसरो इतनी ज़्यादा इनोवेशंस नहीं कर रहा था. इसलिए मुझे लगता है कि कल्पना चावला को अमेरिका जाके नासा के लिए काम करना पड़ा. मान लो उसी समय अगर हमारी इसरो मजबूत होती तो मुझे लगता है कि कल्पना चावला कभी नहीं जाते वहाँ और वो हमारे ही इंडिया के इसरो के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन के उभर सकते थे. ठीक है, पर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. वी डू नॉट हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर ओके टू प्रमोट सच टैलेंट्स, जिसके चलते हमारे टैलेंट्स बाहर देश में चले जाते हैं. मुझे पता है कि आप में से कई लोग क्या करेंगे, जब डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन जाएंगे तो आप देश छोड़ के विदेशों में आप सेटल हो जाओगे, आप चले जाओगे. ठीक है, समझ गए बच्चों. लेकिन कोशिश हमेशा करना कि आप जिस जन्मभूमि में आपकी पैदाइशी हुई है उसके लिए थोड़ी बहुत सेवा करने की मनोभाव हमेशा रखना. डू नॉट फॉरगेट योर मदरलैंड because it provides you everything that you want in your life. Okay, clear? So anyway, she became the first Indian woman to go into the space. That is why she is considered as an inspiration for all the Indian women. जो कहते हैं, जो Indian women कहते हैं कि no, I can't do it. It is very difficult. We are women. We are not man. We are not as strong as the man. So she proved everybody wrong. उसने हर किसी को गलत ठहरा दिया. उसने हर किसी को गलत कह दिया कि women are equally strong as the man. वो मेल की तरह या पुरुष की तरह वो भी इतने ही ताकतवर होते हैं. and they can do everything what a man can do. वो हर चीज़ कर सकते हैं जो एक मैन कर सकता है. Okay, so women are not less in any field. They're not, inferior to the men. They are not inferior to men. Men के मुकाबले वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है. So anyway, so in this way, she has proved everybody wrong and she has shown a path for our Indian women. और हमारे देश के बच्चियों के लिए, हमारे देश के गर्ल्स के लिए, हमारे देश के जो नौजवान लड़कियां हैं, फॉर ऑल शी इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन. ओके, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो वीडियो देख रही हैं, हमारी जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं, ठीक है, यू ऑल शुड लर्न टू बी अ फाइटर इन लाइफ. ट्राई टू बी अ फाइटर. फाइटर का मतलब ये नहीं कि बेटा लड़ने वाला फाइटर, झगड़ने वाला, मुक्के मारने वाला फाइटर की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा. आई एम टॉकिंग अबाउट मीन्स यू शुड try to fight for the justice. You should try to fight for your rights. आप अपने अधिकार के लिए, समाज में अच्छाइयों के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहें. ओके, अपने हक मांग कर हमेशा लेना. डू नॉट वेट फॉर योर टर्न. कभी अपने हिस्सा आने के लिए समय का प्रतीक्षा मत करना. यू शुड डिमांड इट. ओके, एनीवे लेट अस मूव इट. सैडली होता क्या है, देखो इसमें बताया गया. सैडली, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, सैडली मीन्स अनफॉर्चुनेटली, द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी. सेकेंड मिशन यानी कि एक बार तो जा चुके थे, 1997 में जा चुके थे एक बार, मतलब
इससे ये पता चलता है कि कल्पना चावला जो थी, सी विजिटेड स्पेस फॉर द सेकेंड टाइम. Okay, in 1997 she went to space for the first time. Okay, uh, in the Columbia space shuttle. Again she got selected for the second tour to Columbia, second tour to the space in the same space shuttle Columbia in the year 2003. 2003 में फिर से शी वॉज सिलेक्टेड, फिर से सिलेक्ट की गई. ओके, आई थिंक शी वॉज अ वेरी प्रॉमिजिंग एस्ट्रोनॉट, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एस्ट्रोनॉट थी. प्रॉमिजिंग मीन्स वेरी वेल बिल्ट, टैलेंटेड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग एस्ट्रोनॉट. आई थिंक दैट्स वाई शी वॉज सिलेक्टेड बाय द NASA again in 2003 to visit the space and do some experiments. Okay, वो ऐसे ही घूमने नहीं जाते बेटे. ओके, द एस्ट्रोनॉट्स वो जाते हैं, उनके लिए बहुत करोड़ों, मतलब अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं. ओके, वो स्पेस टेक्नोलॉजी जो होता है सबसे हाई फाई टेक्नोलॉजी होती है बेटा. दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो सारे स्पेस में ही यूज किया जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में ही यूज होता है. ठीक है, तो आप भी अगर चाहते हैं कि कुछ एक अच्छी करियर बनाना चाहते हैं, स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेस के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं. तो उसके लिए आपको 12th में साइंस पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, तब आप इसके बारे में, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए. ठीक है, आप बहुत क्रिटिकली थिंक कर पाना चाहिए. देन यू कैन डेफिनेटली बिकम एन एस्ट्रोनॉट इन लाइफ. सो what happens here, sadly, unfortunately, the second mission to the space ended in tragedy. Okay, ended in tragedy मतलब खत्म हुआ. Ended means खत्म हुआ. Ended in tragedy. कैसे में खत्म हुआ? हैप्पीनेस में? नो, ट्रेजेडी, दुख के साथ खत्म हुआ. व्हाट वाज द, वो दुख का मोमेंट क्या था? व्हाट हैपेंड एक्चुअली? बच्चों, जब हम इसको पढ़ते हैं तब पता चलता है कि व्हाट व्हेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्पेस, जब स्पेस से वापस आ रहे थे, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस. ओके, एक एक्सीडेंट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट ऑल द members who were there in that space shuttle, they were killed in air. वो लोग एयर में ही, यानी कि स्पेस में ही ख़त्म हो गए. So all the crew members were killed there. Okay, so now let us move into the this one and try to read a report. Okay, we have a report here. The report एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है. Okay, an article from the newspaper has been taken. ओके, फॉर योर रीडिंग, सो दैट आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलता है, वो आज हम आपको बताएंगे, ताकि आपके घर में जो न्यूज़पेपर्स आती है ना, उसको भी आप पढ़ सको. ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत होती है टू इम्प्रूव इंग्लिश एंड टू एनरिच योर वोकेबुलरी. आपके वोकेबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट technique that everybody suggests. Okay, so now let us see. Okay, उससे जाने से पहले बच्चों यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसका मीनिंग्स हमें जानना जरूरी है. राइट, जैसे कि आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अभी दिखेगा. जैसे कि स्पेस शटल क्या होता है, देखो, स्पेस शटल इज अ स्पेस क्राफ्ट यानी कि वो स्पेस में जाने के लिए एक व्हीकल है. इट इज़ अ व्हीकल. ओके, दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल, जो कि बार बार ट्रैवल करने के लिए यूज होता है. इट इज़ नॉट फॉर ए सिंगल यूज. ऐसा नहीं कि मतलब एक बार गया और आया तो फिर उसका काम ख़त्म. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ऐसे में तो बहुत पैसे बर्बाद हो जाएंगे. ओके, सो what that scientists do, they design the space shuttle in such a way that इस तरह से बनाते हैं कि that can be used repeatedly और that can be used more than once. ठीक है, एक बार से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जा सके. पहले रॉकेट क्या होता था, अनलाइक रॉकेट में उल्टा होता है. रॉकेट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वंस, एक बार ही रॉकेट यूज किया जा सकता है. ठीक है, क्लियर. रॉकेट बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो.
आज आप क्या करोगे, एक डिक्शनरी लोगे आपकी, ठीक है, और उस डिक्शनरी में इन सब वर्ड्स के मीनिंग तो ज़रूर ढूंढोगे। अभी तो मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर भी एक बार आप ज़रूर ढूंढ लेना। ट्राई टू फाइंड आउट दिस वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि कौन सी डिक्शनरी आपको ख़रीदना है बच्चों। मैं अभी स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप देख लो। ये डिक्शनरी आप मोबाइल्स पे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और उसको ऐप को परचेज भी कर सकते हो। बेटा बहुत ज़िंदगी में काम आएगा, ये बहुत अच्छी ऐप है, ठीक है। ये है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, ठीक है, ये याद रखो, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी। ये डिक्शनरी को बच्चों याद रखना। इफ यू हाँ you must purchase this one, and this is very helpful and useful for students. Okay, so please do not forget to buy one. Now I'm going to discuss with the meaning of this, some of the words given here. Naturalized US citizen. What is the meaning of naturalized US citizen? Naturalized means क्या होता है बच्चों कि born in a different country but settled in a डिफरेंट कंट्री। एक जगह में पैदा हुआ लेकिन दूसरे में सेटल्ड है। जैसे कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला के कंटेक्स्ट में क्या हुआ, कल्पना चावला वॉज बर्न इन इंडिया बट शी वॉज मैरिड एंड सेटल्ड इन, शी गॉट मैरिड एंड सेटल्ड इन what you know America. So that's why we say that it is naturalized US citizen. Okay, that's why we say that it is naturalized US citizen. She got naturalized US citizenship. Okay, she was born in India but she got the citizenship of America. Okay, it is possible. You can have dual citizenship also. दो citizenship भी आप रख सकते हो. Okay, now space. What is space? Space is the area above the earth. Suppose this is our earth, then this is the area. The area above earth is called space. The area above the earth's surface is called space. Okay, I hope it is clear. Okay, now frontiers of space. Frontiers बच्चों, जहाँ तक बात है frontiers की, ओके, फ्रंट आप लोग देखते होंगे ना कि फ्रंट मतलब सामने, फ्रंट मीन्स क्या है, सामने। लेकिन यहाँ सामने की बात हो रही है या कुछ और मीनिंग यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है, वो हमको देखना है। यहाँ फ्रंटियर्स का मतलब ये होता है बच्चों कि बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर, द बॉर्डर ऑफ स्पेस। ओके, द बॉर्डर एरिया ऑफ स्पेस, राइट। आप जब अर्थ छोड़कर जब जाओगे, आप स्पेस में जाओगे, ठीक है, तो पहले आपको तो पूरा स्पेस तो मीन्स इट्स अ ह्यूज एरिया, यू कांट इवन मेजर द डेप्थ ऑफ द स्पेस। स्पेस का डेप्थ मेजर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट impossible. We can't measure the depth and the length of the space. Okay, so what do the astronauts go? Astronauts जाते कहाँ तक हैं? They go up to the frontiers. Mostly they go up to the frontiers. Frontiers of this border तक जाते हैं, मतलब अर्थ और स्पेस का जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर जाके वो लोग ज़्यादातर रिसर्च करते हैं. दे डू नॉट गो मच डीप इन टू द स्पेस बिकॉज दे मे पुट दमसेल्व्स इन ट्रबल ऑल्सो. वो उनको ट्रबल भी हो सकता है. दे मे नॉट कम बैक ऑल्सो और दे मे फाइंड सम डिफिकल्टी ऑल्सो. ओके, सो फ्रंटियर्स मीन्स border. Okay, so what's the meaning of frontier? Border. Abode. What is the meaning of abode? Abode means on the board. On the board. बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड का मतलब भी जाना जरूरी है. बोर्ड का मतलब कि किसी एरोप्लेन या किसी हेलीकॉप्टर या कोई स्पेस शटल के में जो लोग बैठते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, दे आर कॉल्ड बोर्ड. द पीपल हु बोर्ड ऑन द हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन और in the space shuttle, they are called the people who have boarded it, or the people on board, they are called people on board, right? So abode means on the board.
राइट। लिफ्ट अप, ये बहुत बढ़िया वर्ड है बेटा। लिफ्ट अप और टेक अप, ये दोनों देखो, जब भी आप स्पेस शटल की बात होती है, अच्छा स्पेस शटल की मूवमेंट कैसे होती है, देखो ये है स्पेस शटल, ये कैसे जाती है, इट डायरेक्टली मूव्स ऑफ, राइट, इट डायरेक्टली मूव्स ऑफ, राइट, ये सीधे वर्टिकली, इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, वो वर्टिकली ऊपर की तरफ, इट वर्टिकली मूव्स अपवर्ड, ठीक है, ऐसे मूवमेंट को कहते हैं लिफ्ट ऑफ। अच्छा लेकिन टेक ऑफ क्या होता है, देखो टेक ऑफ मतलब क्या है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना, धीरे धीरे टेक अप करना। जैसे कि आप देखे होंगे एरोप्लेन, मान लो ये एरोप्लेन है, ठीक है, ठीक है, पहले तो ये क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे जाएगा, फिर धीरे धीरे वो इट मूव्स अप इनटू द एयर, सो इसको कहते हैं टेक ऑफ। इसको क्या कहते हैं, टेक ऑफ, मतलब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना, नॉट डायरेक्टली। ओके, जब डायरेक्टली वर्टिकली जो जाते हैं, रॉकेट्स हो गया, ओके, या स्पेस शटल हो गया, वो लोग सीधे डायरेक्ट वर्टिकली जाते हैं, उसको लिफ्ट अप कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रेन, जो प्लेन्स वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, जो धीरे धीरे फर्स्ट दे यू नो दे एक्सेलरेट ऑन द ग्राउंड, धीरे धीरे पहले एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, ओके, दे मूव वेरी फास्ट ऑन द ग्राउंड, रनवे में दौड़ेंगे, देन ग्रेजुअली दे विल मूव इनटू द एयर, सो दैट इज कॉल्ड टेक ऑफ। ओके, तो जहाँ भी स्पेस शटल की बात आती है तो स्पेस शटल में हम लोग यूज करते हैं कौन सी वर्ड, लिफ्ट अप, नॉट टेक ऑफ। ओके, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। देन क्रू, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रू, मैंने क्रू बताया था, मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, a group of scientists, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के ग्रुप, ओके, द क्रू मेंबर्स कहते हैं हम लोग उनको, द मेंबर्स हु ट्रेवल इन द स्पेस शटल दे आर कॉल्ड क्रू मेंबर्स, ओके, और दे आर द मेंबर्स ऑफ द क्रू, मेंबर्स ऑफ द क्रू, इज दैट क्लियर, ओके। एंड moreover, one more interesting thing that you find here is, you know, my dear children, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत यू नो डाइवर्स लैंग्वेज है, डाइवर्स इन द सेंस दैट कि उसमें आपको दुनिया के हर लैंग्वेज के वर्ड्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। जैसे कि हमारे हिंदी के जो शब्द हैं, खीर, आपको पता है ना, खीर, खीर खाते हो ना, बहुत टेस्टी होता है, हाँ, इससे you know very tasty dish in India, okay, डेजर्ट की कैटेगरी में उसको रखा जाता है, खीर, ओके, तो राइट, KHEER, खीर, सो इट्स एन इंडियन पुडिंग, ओके, ये इंडियन वर्ड है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अलग अलग, और एक इंडियन वर्ड गया है नमस्ते, नमस्ते, right, namaste, so namaste is another Indian word that also has been included। हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारे इंडिया के और अलग अलग भाषाओं के जो कि इंग्लिश में इंक्लूड कर दिया गया, जिसके चलते उनकी जो स्पेलिंग होती है, खीर की जो स्पेलिंग इंडिया में होगी वही स्पेलिंग को हूबहू वही क्या किया जाता है, दैट इज़ मैंशनड इन द डिक्शनरी, वो डिक्शनरी में इंग्लिश के लिखा जाता है। तो इसलिए कुछ कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग इंग्लिश का थोड़ा उत्पटांग सा लगता है हमें, जो लैटिन से आया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, ये पढ़ो, इसको पढ़ो, तो इसको, ये देखो यहाँ PSY, इसको क्या बोलेंगे, पोसिचोलॉजी, या क्या होगा, क्या होगा इसकी प्रोनाउंसिएशन होगा साइकोलॉजी, यहाँ पे P साइलेंट होता है बेटा। ये जो लैटिन वर्ड होता है ना, कुछ कुछ लैटिन वर्ड, लैटिन से जो आया है उसमें कुछ कुछ लेटर्स साइलेंट रहते हैं, जैसे फ्रेंच से आएगा तो वहाँ भी कुछ अलग है उनकी स्पेलिंग। तो इस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इट हैज़ बोरोड मतलब धार लिया है, इट हैज़ बोरोड वर्ड्स फ्रॉम वेरियस कल्चर्स एंड वेरियस लैंग्वेजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट you may find, you know, the spellings to be very very unique in some cases, spellings अलग अलग आपको मिलेंगी। जैसे कि जो अमेरिकन इंग्लिश होता है, उस अमेरिकन इंग्लिश में कुछ कुछ चीज़ों का
स्पेलिंग पूरा अलग होता है, जैसे कि एयरप्लेन, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन कहते हैं, बट द अमेरिकन पीपल कॉल इट एयरप्लेन, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स उसको क्या बोलते हैं, एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है। ये देखो और एक प्रोग्राम, दिस इज अमेरिकन प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन अगर उसी को अगर ब्रिटिशर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम, PROGRAME, ये हो गया प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन जब अमेरिकन लिखते हैं तो उनका अमेरिकन इंग्लिश अलग है, तो वो उनकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। बहुत सारे हैं, जैसे और एक मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन लोग जो कलर, COLOR लिखते हैं, कलर, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स कैसे लिखते हैं बच्चों, मेक ए गेस, COLOUR लिखते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में देयर आर सम स्पेलिंग डिफरेंसेस ऑल्सो, ओके। सो वो भी आपको यहाँ पढ़ते समय देखना, कौन सी ब्रिटिश इंग्लिश, कौन सी अमेरिकन इंग्लिश है और उसका ब्रिटिश वर्जन क्या होगा, वो भी आप खोज के निकाल सकते हो। मैं जब पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को, जब डिस्कस करेंगे ना, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज वर्ड्स एंड ट्राई टू डिस्कस विद यू, ठीक। उसी तरह और एक वर्ड है जैसे ऑनर, HONOR, HONOR, ऑनर, आई वॉन्ट टू ऑनर यू सर, वी ऑनर यू सर, ऐसे बोलते हैं ना, ऑनर। लेकिन इसका ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, HONOUR, ऑनर, ऑनरेबल, यहाँ पे ABLE लगा दो, ऑनरेबल, यहाँ पे ABLE लगा दो, ऑनरेबल, ओके। द प्रोनाउंसिएशन इज बिट, यू नो, very much similar, but you know the spellings are quite dissimilar, okay. So this is where means you find the differences in the British English and the American English, okay. So with that we come to the end of today's video. In next class, my dear children, I will teach you the text of this particular, means in the next class I am going to teach you the news report. This is a news report taken from the newspaper. It is an abstract of a report. Then we will go into this report, how the news reports are being written and how should we interpret it. उसको कैसे पढ़ना चाहिए, किसी भी आर्टिकल को पढ़ते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, everything I will discuss in details, okay. So till then, have a good day, and I hope you all have enjoyed this video today. Please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.